Good afternoon. Good afternoon. Yes, yesterday we finished RLC series. Yes. Yes, Yes. Huh. Hmm. Now next write down AC parallel circuit. For this AC parallel, there is no theory part, only numericals. Okay. So first we will understand what is AC parallel circuit. Draw this diagram. Done. Yes. Tell me which voltage this one. Yes. Which voltage? AC voltage. Yes. V. Okay. Now here this is parallel circuit. Means voltage will be same through first branch as well as second branch. So voltage across first branch and second branch will be same. But current will distributed. Total current will distributed. And that current will be I1 and I2. क्लियर ठीक है दो ब्रांच है तो ये टोटल करंट किसमें डिवाइड हो रहा है I1 एंड I2 I क्लियर सो नाउ फर्स्ट ब्रांच इज विच सर्किट फर्स्ट ब्रांच इज विच सर्किट यस फर्स्ट ब्रांच इज विच सर्किट RL series. RL series circuit okay and second branch is which circuit second branch is which circuit RC series. yes RC series circuit okay now we will show here हम क्या करेंगे इसको Z1 बोलेंगे first branch को और Z2 so Z1 is nothing but which circuit RL series circuit so Z1 is equal to R plus J XL according to RL series circuit similarly tell me for Z2 similarly tell me for Z2 yes Z2 क्या आएगा yes Z2 is equal to R minus मेरा आवाज आ रहा है JXC. yes R minus J XC now we know how to find out XL and XC okay after finding Z1 and Z2 हमें क्या करना होता है इसमें पैरेलल सर्किट में I1 फाइंड करना होता है so I1 will be what in AC circuit I is equal to AC circuit I is equal to V by Z. V by Z. Okay. Now for parallel, voltage will be same for first branch and second branch. So voltage will be same. I1 is equal to V upon Z1. Okay. Now tell me I2 is equal to what? V upon Z2. Yes. V upon Z2. Okay. Now we can find this total current by addition of I1 plus I2 also or total current is equal to
V अपॉन ZT। क्लियर? फर्स्ट हमने क्या बताया, Z1 RL सीरीज सर्किट के अकॉर्डिंग Z1 का फॉर्मूला लिखा, Z2 का फॉर्मूला लिखा। बाद में I1 फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला ले रहे हैं, V बाय Z1। I2 फाइंड करना है तो V बाय Z2। टोटल करंट फाइंड करना है तो किसका कॉम्बिनेशन है, I1 प्लस I2। क्लियर? क्लियर हो गया? फॉर्मूलाज क्लियर हो गए? सो राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज फास्ट। Done. Z1, Z2. Now I1, I2 and total current. सब फॉर्मूलेस लिख लिए? यस और नो? यस मैम। मेरा आवाज? हाँ, ओके। नाउ हियर फर्स्ट ब्रांच में हमने किससे रिप्रेजेंट किया, इम्पीडेंस Z1, और सेकेंड ब्रांच में इम्पीडेंस Z2। ठीक है? नाउ अभी ये फर्स्ट ब्रांच है Z1, सेकेंड ब्रांच इज Z2। ठीक है? अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज V। अभी ये Z1 एंड Z2 पैरेलल है, तो मुझे टोटल Z निकालना है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2। So write down this formula also. लिखा सबने ZT? यस? Yes, ma'am. ठीक है? हाँ, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। Draw this circuit diagram. Is it visible? डायग्राम विजिबल है? यस? इज इट Yes, ma'am. विजिबल? Write down question. For the circuit shown, find supply current, comma, current in each branch and total power factor. मैम इस ब्रांच के बाद क्या लिखा हो, मैम ब्रांच के बाद क्या लिखा हो? हाँ, हेलो, किसके बाद? इच ब्रांच लिखा है ना, उसके बाद क्या सेंटेंस था? एंड टोटल पावर फैक्टर।
डन, डायग्राम हो गया। Yes, ma'am. ये एग्जाम में आके गया है ये क्वेश्चन, मई 2016 में। ओके, फॉर 5 मार्क्स के लिए आता है ये क्वेश्चन। नाउ सी हियर, फर्स्ट ब्रांच, अभी मैंने आपको बताया ना फॉर्मूलेज, सेम कंसेप्ट है इधर। हाँ, शो हियर Z1 फर्स्ट ब्रांच के लिए, डॉट डॉट करके Z1 बता दो। सेकेंड V2, सॉरी Z2। So Z1 is which circuit? Z1 is which circuit? Z1 branch RL. RL series circuit. Now show here current I1 and I2 और ये टोटल करंट। मुझे बताओ ये सर्किट में क्या क्या निकालना है। फॉर दिस सर्किट व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, क्या क्या फाइंड करना है? I. टोटल I1, करंट, सप्लाई करंट, ब्रांच I1, करंट। ब्रांच करंट कितने? I1, Yes, I2. I1 and I2. So Total power so factor. show that I1 and I2, huh? And total power factor. Total power factor. Okay? अभी क्या करेंगे हम? Z1 is RL series circuit. Huh? This is the value of inductor. So first find out XL. XL find करो. ओमेगा L 2 pi FL। क्या है XL? Yes, XL value कितना आ रहा है XL का वैल्यू? यस, मेरा आवाज आ रहा है? 37.699। हेलो, यस 37.699 बराबर है। Yes, ma'am. यस, हाँ। नाउ फाइंड आउट Z1 बार इज इक्वल टू R प्लस J XL। तो R आपके पास कितना है Z1 का? Z1 का R कितना है? 10 ohm. 10 ohm. 10 प्लस J, यस 36.37। हाँ, अभी ये रेक्टेंगुलर या पोलर फॉर्म है ये वाला? Rectangular form. रेक्टेंगुलर, इसको पोलर में कन्वर्ट करो। Z1 बार इज इक्वल टू Z1 एंगल Φ1। टेल मी इन पोलर फॉर्म फर्स्ट। यस, क्या आया पोलर फॉर्म? 39 और मैम 575.14। 75.14 करेक्ट। हाँ, ये Z1 का हो गया। नाउ सिमिलरली फॉर Z2, आप बताओ अभी Z2 कैसे करेंगे? Z2 बार इज इक्वल टू, Z2 इज विच सर्किट? ये ब्रांच में कौन सा सर्किट है? RC series circuit. आरसी। तो फॉर्मूला बताओ अभी। यस, आरसी सीरीज। तो फॉर्मूला बताओ अभी रेक्टेंगुलर फॉर्म का। R minus Z2 JXC. बार इज इक्वल टू, R minus JXC. यस R माइनस जे एक्सी। अभी एक्सी दिया, ये हमें फाइंड करना है।
फाइंड आउट यस, फाइंड आउट करना फाइंड आउट करना है. सो फाइंड आउट फर्स्ट XC वेर XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C. फाइंड करके बताओ. 79.577 79.577 यस. हाँ, हाँ. नेक्स्ट XC हो गया. अभी Z2 लिखो. R का वैल्यू इज 20 माइनस 79.577. अब इसको पोलर में कन्वर्ट करो. पोलर में क्यों करने का वो अभी क्लियर होगा, किसके लिए कर रहे हैं हम पोलर में. डन. Z2 इन पोलर फॉर्म क्या आ रहा है. क्या आया Z2 पोलर फॉर्म. 82.05 82.05. एंगल 75.89 degree एंगल माइनस प्लस plus एंगल माइनस प्लस. फिर से करो, फिर से पोलर फॉर्म करो इसका. टेक माइनस साइन. minus यस, माइनस 75.89 डिग्री ओम. सो हमें Z1 Z2 मिल गया. फर्स्ट पहले काम क्या करेंगे, हम I1 फाइंड करेंगे. I1 बार इन AC सर्किट I इज इक्वल टू V बाय Z. ओके. अभी यही कंसेप्ट हम I1 को लिखेंगे तो क्या आएगा बताओ पैरेलल में. V upon Z1 यस, V अपॉन Z1. ठीक है. अभी V दोनों ब्रांच के लिए सेम है तो V को क्या करते हैं, V एज अ रेफरेंस फेजर कंसिडर करते हैं. V एज ए रेफरेंस फेजर. सो V का एंगल 0 डिग्री होता है. V का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री. वाई 0 डिग्री, वाई 0 डिग्री. यस, it is on the reference यस. और रेफरेंस पे क्यों लिया हमने, क्योंकि वोल्टेज दोनों ब्रांच के लिए सेम है क्योंकि ये पैरेलल में है. हाँ, ठीक है. सो राइट डाउन I1 इज इक्वल टू V बाय Z1. अभी मुझे V बताओ. V क्या है हमारे पास, V कितना है, V कितना है 200 200. और उसका एंगल कितना है, एंगल V का एंगल 0 डिग्री. अभी Z1 आपके पास पोलर फॉर्म है Z1 का, ये वाला वो लिखो इधर. हाँ, दोनों टर्म को डिवाइड करना है तो क्या लगता है, पोलर फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म. दोनों क्वांटिटी डिवाइड करना है तो पोलर लगता है रेक्टेंगुलर फॉर्म. यस, आंसर मी. rectangular नो, पोलर फॉर्म. इधर देखो, अभी दो क्वांटिटीज ऐड करना है हमें तो कौन सा फॉर्म लगता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म लगता है. दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है तभी भी कौन सा फॉर्म लगता है, रेक्टेंगुलर. अभी दोनों को डिवाइड करना है तो आपको पोलर लगेगा. दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो पोलर लगता है. क्लियर, ठीक है. तो यही कंसेप्ट इधर लगाना है. अभी ये दोनों डिवाइड में है और ये दोनों भी हमने पोलर में लिखा है.
So divide 200 divided by 39. क्या आ रहा है बताओ? I1 is equal to first 5.128. 128. 5.128. हाँ, एंगल ये ऊपर जाके क्या होगा? माइनस। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ यहाँ से I1 का वैल्यू बताओ। I1, ओनली I1 क्या आएगा? ये पूरे इसमें से I1 का वैल्यू चाहिए। 5.18 112. यस, 5.128 एम्पियर। डन? क्लियर? सिमिलरली फाइंड आउट I2। I2 फाइंड करो। V अपॉन Z2। Z2 का पोलर फॉर्म लो। Ma'am, I2 is equal to 2.437 ampere. Yes, ma'am. 2.437. Yes, 2.437. And angle? 75.89. Angle? Yes. Positive, negative? Positive. पॉजिटिव। हाँ, डन। I2 डन हो गया। नाउ टोटल करंट कैसे? इसका मैग्नीट्यूड लिख लो I2 का। I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। नाउ I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू टोटल करंट I। अभी दोनों का एडिशन करना है। कौन सा फॉर्म लगेगा? रेक्टेंगुलर और पोलर? Rectangular form. रेक्टेंगुलर। तो ये I1 जो भी था ना, उसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करो, और I2 को भी रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करो, और बाद में दोनों का एडिशन ले लो। I1 I2 का रेक्टेंगुलर फॉर्म करो और दोनों ऐड करो। बाकी लोग सॉल्यूशन के नीचे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वो स्टार्ट करो, कॉपी करो। डन? रेक्टेंगुलर का एडिशन हो गया। यस, हो गया। बताओ, टोटल करंट का पोलर फॉर्म चाहिए मुझे। यस, Ma'am, 7.563 and 75.38. टोटल करंट
नहीं, रॉन्ग है। अब क्या बता रहे हो आप, पोलर या रेक्टेंगुलर फॉर्म? मैम पोलर फॉर्म। नहीं, रॉन्ग है, बराबर करो। I1 का पोलर रेक्टेंगुलर फॉर्म बराबर लिया। हम एक बार करके बताओ ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक मिनट। टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अभी I1 हमने, ये जो I1 है 5.128 एंगल माइनस 75.14। ठीक है, पहले इसको ना कन्वर्ट करने का है, ये इसको मैम रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करके बताओ। हाँ, मैम इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट 3.218 करो। एंगल माइनस 53.639। यस, राइट आंसर, राइट। अभी इधर देखो, ये जो I1 था इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करके मुझे बताओ क्या आ रहा है। 1.315 माइनस बताओ J वहां से। 4.956 1.315 प्लस जे, माइनस J 4.956। हाँ 4.956। हाँ, वैसे ही मुझे I2 क्या है आपके पास अभी, I2 इज 2.437 एंगल 75.91, उसका रेक्टेंगुलर करके बताओ। 0.594 प्लस J 2.363। 2.363। ठीक है, अब ये दोनों का एडिशन करो, रियल पार्ट का एडिशन करो और इमेजिनरी पार्ट का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होगा। ये करके बताओ मुझे, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, मैम दोनों का एडिशन करो। 1.909 1 minus J पॉइंट 4.593 2.593। 593। हाँ, अभी ये यस, ये रेक्टेंगुलर है, इसको पोलर में करो। थ्री पॉइंट टू वन नाइन एंगल माइनस 53.639। यस, 3.219 बराबर, हाँ माइनस 53.63। 639। हाँ, ये मेथड से किया ना। यस मैम। यस, हाँ बराबर है आंसर। हाँ, जो फर्स्ट किसी ने तुम बताया था ना वो रॉन्ग है, ये राइट आंसर है। क्लियर हो गया? जब आपको दो क्वांटिटी ऐड करना है तो रेक्टेंगुलर फॉर्म लगता है और उसको बाद में फिर से इसमें कन्वर्ट करने का। अभी इसमें टोटल करंट का वैल्यू मैग्नीट्यूड 3.219 एम्पियर। डन। अभी क्या बाकी है बताओ, क्वेश्चन में क्या बाकी है? यस, पावर फैक्टर। अभी क्या बाकी है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाइव। हाँ, पाई पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाइव। तो पीछे बैठने के लिए, पकड़ने के लिए लिखा। अभी मुझे बताओ आपके पास किसके किसके एंगल है? I1 का एंगल है, I2 का एंगल है, V का एंगल है। अभी ये एंगल किसका चाहिए हमें? ये एंगल V एंड I का चाहिए। ठीक है, अब बताओ V का एंगल कितना है? 0 और I का एंगल 53, तो ये 53 एंगल लेना है। कॉस ऑफ माइनस 53.63। देखो क्या आंसर आ रहा है। 0.5929।
हाँ 0.593 बराबर है आंसर। हाँ डन। ठीक है, आता हूँ 10 रोल मिनट नंबर में। 33। ठीक है, आता हूँ 10 मिनट यस मैम, रोल नंबर 33 यस मैम। ऑन द वे हो। नो मैम, नो मैम। पानी की वगैरह की थोड़ा कम 64। मैंने के ठीक है, अच्छा था। और अगर कम करेंगे तो फ्लैट चार्ज कुछ करना हो तो सुना जाए। 64 रोल नंबर 64। ठीक है, हो गया ये सब क्लियर होगा सबको। हेलो मारा मारा का फोटो खोलो चाहिए। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? यस मैम। अभी ना हमने ये करंट कैसे निकाला, ये वाला करंट कैसे निकाला, क्या लिया हमने कॉम्बिनेशन I1 प्लस I2। ठीक है, और एक मेथड है टोटल करंट इज इक्वल टू V बाय टोटल Z। ठीक है, ये बाद में करके देखो। अभी टोटल Z कैसे निकालना है, वेर टोटल Z इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 ना। मैं ये ओरली बता देती हूँ आपको। Z1 इंटू Z2 करना है तो आपको पोलर लगेगा या रेक्टेंगुलर फॉर्म? पोलार। पोलर। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, पोलर। हाँ, अभी डिनोमिनेटर में बताओ, दोनों ऐड है तो क्या लगेगा? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर। हाँ, अभी लास्ट आंसर के लिए डिवाइड है, दोनों भी डिवाइड करना है तो दोनों भी कैसे चाहिए? पोलर। पोलार। पोलर। तो ये जो रेक्टेंगुलर है ना, इसको पोलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके लास्ट आंसर आएगा। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर होगा? ZT कैसे निकाल सकते हैं हम? Z1 पैरेलल टू Z2 Z1 पैरेलल Z2 तो Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय Z1। सो ये मेथड से भी टोटल करंट निकाल सकते हैं हम। तो ये आप बाद में ट्राई करो। हाँ, और अपना जो आंसर आया ना तो सेम आता है क्या, एक बार चेक करो। ठीक है, क्लियर? ओके मैम। यस, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? हाँ, टेक डाउन नेक्स्ट। कोई तो भी ट्रैवल भी कर रहा है और लेक्चर के लिए सिर्फ अटेंडेंस के लिए चालू है। हाँ, न्यूमेरिकल दिख रहा है? Yes, ma'am. राइट डाउन दैट। Diagram is not given, huh? We want to draw. A resistance of 10 ohm and pure coil inductance 31.8 millihenry. रोल नंबर एक मिनट।
फाइनल भी बोलना पड़ेगा क्या मैंने? फाइनल साथ दबाई क्या? हाँ लिखा। यस। न्यूमेरिकल लिखा सबने? Yes, ma'am. नहीं मैम। 1 मिनट, मैं ये 64 को योगेश माइक ऑफ कर तेरा। अरे कब से बोल रही हूँ उसको माइक ऑफ करो। एक्चुअली नीचे भी तो मैम श्वेता का भाई रहेगा। ठीक है। ये हो गया। हाँ, हमें सर्किट ड्रॉ करना है। अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम and pure inductance 31 millihenry एक काम करो, रिजॉइन करो। मॅम रिमूव्ह करा ना त्याला. Yes, ma'am. हाँ, अभी इधर देखो क्या है, न्यूमेरिकल क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम and a pure coil of inductance 31.8 millihenry are connected in parallel. ठीक है। अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज कितना दिया है? सप्लाई वोल्टेज कितना दिया है? 200. 200 वोल्ट। 200 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। ओके। अभी क्या फाइंड करना है हमें ये न्यूमेरिकल के लिए? फास्ट जल्दी बताओ। टोटल करंट। टोटल करंट एंड टोटल पावर फैक्टर। ठीक है। यस, टोटल करंट एंड टोटल पावर फैक्टर। Now say this is I1 current, this one, and this I2 current, current I. मैम Yes, मैम कॉइल है तो उसका बोलो। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लेंगे? प्योर कॉइल बोला, प्योर कॉइल, प्योर कॉइल यानी प्योर इंडक्टर। ओके मैम। ठीक है। अभी ये जो फर्स्ट ब्रांच है, दिस इज रेजिस्टर, प्योर रेजिस्टर, तो हम क्या बोलेंगे इसको? IR इंस्टेड ऑफ
I1 IR लिखो और इधर IL लिखो। ठीक है, फर्स्ट फाइंड आउट एक्सेल, फर्स्ट फाइंड आउट एक्सेल। कितना आ रहा है? डू फर्स्ट। कितना आया एक्सेल? 9.99। 99। 9.99, यस। मैम 10 ले हाँ, सकते नाउ क्या उसको? टोटल करंट हमें फाइंड कर, यस अप्रोक्सीमेटली 10। बुक में 10 ही दिया है। यस, टोटल करंट कैसे आएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू करंट? IR plus IL. यस, IR प्लस IL। अभी क्या करेंगे? से इट इज इक्वेशन 1। नाउ फर्स्ट फाइंड आउट IR। कैसे फाइंड करेंगे बताओ? ये वाला कंसेप्ट लगाओ, V बाय Z। तो इसमें क्या चेंज होगा? IR के लिए क्या चेंज होगा? V बाय व्हाट? R। R। ठीक है। सिमिलरली IL इज इक्वल टू क्या आएगा? V बाय प्योर है, वो L। प्योर इंडक्टर है, XL। V बाय XL। अभी ये इंडक्टर है, इंडक्टर ऑलवेज J पार्ट। ठीक है। सो फाइंड आउट IR। V का वैल्यू कितना दिया? 200 डिवाइडेड बाय R वैल्यू इज 10। कितना आ रहा है? 20। 20। नाउ नेक्स्ट, ये जो V इज 200 एंड J 10। इसको पोलर में कन्वर्ट करो, J10 को। टेल मी पोलर फॉर्म ऑफ J10। 10 एंगल 90। क्या रहा उसका पोलर? यस, 10 एंगल 90 डिग्री। अभी दोनों डिवाइड है, दोनों भी पोलर फॉर्म में। वोल्टेज का एंगल 0 होता है फॉर पैरेलल सर्किट। तो IL बताओ क्या आ रहा है? 20 एंगल, -90। ऊपर जाके क्या होगा? -90 डिग्री। ठीक है। नाउ IL ऑल्सो clear and IR also. So find total current IR plus IL. Again, which form required? Rectangular or polar for addition? For addition? Rectangular। रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर। हाँ, अब ये जो 20 है ना, 20 एंगल 0 डिग्री है, इस प्लस 20 एंगल -90, ये दोनों को भी रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करो। जो लास्ट न्यूमेरिकल में किया ना, वही कंसेप्ट लगाओ। Tell me final answer for current in polar form। पोलर फॉर्म में मुझे बताओ मुझे।
क्या आया पोलर फॉर्म? यस, क्या मिला आंसर? टोटल करंट is it 28.28? Yes, ma'am. Angle Minus 45 degree. -45 डिग्री। ठीक है, हाँ। अभी करंट हो गया हमारा। नेक्स्ट इज पावर फैक्टर। फाइंड आउट पावर फैक्टर cos फाई। एंगल कितना लोगे आप? एंगल फाई यस 45. यस 45 डिग्री। क्या आ रहा है आंसर पावर फैक्टर? 1/√2. यानी आंसर क्या है? 0.707। Yes, ma'am. 0.07. यस डन। ये सिर्फ ड्रॉ करो, इसका कंसेप्ट बताती हूँ मैं ओरली। नेक्स्ट सम, फाइंड करंट्स I1 एंड I2। जो I1 फ्लो हो रहा है वो ब्रांच कौन सा है? RL सीरीज सर्किट या RC सीरीज सर्किट? RC। RC। तो उसके जो पैरामीटर्स है वो क्या क्या दिए है? R इज इक्वल टू क्या दिया? यस 3 ओम। R कितना दिया? 3 ओम। तो जो कैपेसिटर है उसका वैल्यू दिया या XC दिया? C दिया या XC दिया? XC। XC is given. Okay, so I1 का ब्रांच में R एंड XC is given. सेकेंड ब्रांच क्या है? सेकेंड ब्रांच क्या है? RL या प्योर R? प्योर आर। यस। और एक टोटल करंट दिया, वो किस में दिया? पोलर फॉर्म में या मैग्नीट्यूड में दिया? पोलर। पोलर में। हाँ, अभी इधर देखो, हाँ? सिर्फ मैं ओरली बता देती हूँ, अब बाद में करो। नाउ सी हियर, Z1 कैसे लिखा? मुझे Z1 बताओ यहाँ से। ये फर्स्ट ब्रांच यानी Z1 और ये Z2। Z1 कैसे लिखा? इधर Z1 कैसे लिखा? RC सर्किट है ये। 3 माइनस जे XC का वैल्यू कितना है? 4। सो 4 ओहम। ठीक है। Z2 इज प्योर रेजिस्टर, सो Z2 इज इक्वल टू R। Z इज इक्वल टू प्योर के लिए हमने Z इज इक्वल टू R डिराइव किया, सो Z2 इज इक्वल टू 10 ओहम। एंड टोटल करंट पोलर फॉर्म में दिया है। ठीक है। अभी I1 फाइंड करना है। आपको करंट डिवाइडर रूल पता है? करंट डिवाइडर रूल, यस? क्या आवाज आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, करंट डिवाइडर रूल बताओ। अभी ये फर्स्ट ब्रांच में Z1 है, हाँ, और इधर Z2 है, और ये टोटल करंट जा रहा है I। आपका Z1 में I1 करंट है और Z2 में I2 करंट जा रहा है।
तो करंट डिवाइडर रूल से I1 निकालना है आपको, तो क्या आएगा? I1 के I अपोजिट into कौन सा Z2. लगा है? यस, टोटल करंट इनटू Z2 डिवाइडेड बाय Z1 Sum of प्लस resistance. Z2। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, अभी Z1 Z2 हमने लिख लिया। हाँ, अभी I1 कैसे लिखेंगे? टोटल करंट इनटू बाय विच रूल? करंट डिवाइडर रूल। हाँ, अभी टोटल करंट इनटू Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2। सिमिलरली I2 के लिए बताओ, इसमें क्या चेंज होगा? I2 करंट के लिए, I2 के लिए क्या चेंज होगा इसमें? यस, I2 I के लिए क्या into चेंज होगा Z1 upon इसमें? Z1 plus Z2. यस, यहाँ पर Z1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अभी ये दोनों मल्टीप्लाई है, तो पोलर लगेगा या रेक्टेंगुलर? Polar. पोलर। नीचे रेक्टेंगुलर। Rectangular. हाँ, और लास्ट आंसर के लिए पोलर डिवाइडेड बाय पोलर, दोनों भी पोलर चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। सेम कंसेप्ट उसके लिए लगाना, I2 के लिए। क्लियर हो रहा है सबको? यस और नो? ये क्वेश्चन आके गए, जितने भी क्वेश्चन लिए ना आज, वो सब यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस थे। हाँ, ऐसी पैरेलल आता ही है फॉर 5 ओके मार्क्स। मैम। ओके मैम। ठीक है, यस हाँ, मैम, थैंक यू मैम। ये बाद में करो अभी। हाँ, कल एक्स्ट्रा लेक्चर रखा है, कितने बजे? हाँ, सिलेबस रहेगा एसी सीरीज सर्किट, सॉरी एसी सिंगल फेज सर्किट, एसी 3 फेज सर्किट एंड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, हाँ। तो कल 2 बजे लेक्चर रखा है, कल रेजोनेंस खत्म कर देंगे। मैम ग्रुप पे भेज दो ना एक बार ओके, सिलेबस। सिलेबस में बताती हूँ ना कल के लेक्चर में। ओके मैम। हाँ, ग्रुप पे तो भेजती हूँ, पहले कैसे 3 पेज तक खत्म होने दो। हाँ, ठीक है मैम, वाइवा का भी बताना। हाँ हाँ, ठीक है, एंड करती हूँ मैं अभी। हाँ, Thank you. ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। बाय मैम। थैंक यू। बाय बाय मैम। मैम। Student, sir has already joined. Sir, you can